Okay, so Python, what is Python? Python is a interpreted language. Okay, interpreted language. Now interpreted means, and what done by compile based language. Does anyone know about the interpreted and a compile based language? Your C, C++ and Java. Okay, Java is also somewhat interpreted and plus compiler, but C and C++, most peoples are the most these languages are the C and C++ are the your compile based language. And you can say that your Java, your Python is an interpreted language. The meaning of interpreted language, the compiler language means the compile to, if you're writing your program and if you want to execute that program, then you need to first compile it. So it means that your program should be converted from your source code to your object code. Then after that, after converting your object code, now that object code you can run it. Okay, but it is not in the case of your Python or interpreted language. Once you write your program, that is your source code of your Python, your every line of your Python get executed one time. Your Python is executing first line, Python interpreter executing first line of your code. The executing means it first compile, first line get compile and then execute. Then second line it will go for the second line, it will compile and then it will get execute. Then it will go for third line, it will get execute. It means that which line has to be executed, that has to be compiled at the same time. So it means the whole source code is not compiled. पूरे का पूरा सोर्स कोड एक साथ कंपाइल नहीं होगा. क्या होगा यहाँ पे? एक लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन होगा, लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन. So that's why you can say that here Python is interpreted like. That's why actually that Python is not so much popular language, because पहले तो क्या था, interpreted language it is slower language. क्यों? क्योंकि जब execute होता है तभी compile होता है, लेकिन compiler based language it is a faster language. So you can say that C, C++ are the faster than Python. Actually base of the Python, अगर आप देखें ना तो Python का जो interpreter है, that interpreter has been developed in C and C++. Okay, so you can say ये मतलब दूसरा कोई नहीं है, ये C, C++ ही है, but you can say it is a high level language. It is a high level language. Okay, so Python is a interpreted high level general purpose programming language. Okay, general purpose programming created by Guido van Rossum. Okay, लेकिन ये कब रिलीज हुआ था? 1991. अगर आपको पता होगा तो जावा कब रिलीज हुआ था? 1995 में. जावा हैज बीन रिलीज 1995. लेकिन ये कब रिलीज हुआ है? 1991. सो which is the older language, Python or Java? So Python is the older language than the Java language. Okay, तो ये क्यों हुआ है? Because it's design philosophy emphasize the code reusability. Okay, ये तो सभी लैंग्वेज में होता है कोड रियूजेबिलिटी. जब अगर हमारे प्रोग्राम सपोर्ट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट दिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट or the your function oriented, then you can say that my code reusability is there. Okay, so Python was convinced in the late of 1980s as a successor of ABC language. Okay, तो कब project start हुआ था? 1980s में, and the Python 2.0 was released in 2000. Now currently which version? अभी Python 3 कब release हुआ? 2008 में. Python 3 has been released in 2008. But what is the newest version available? We can check it. How to check that newest version? You just need to go to your Google and just you have to type the python.org. Okay, so first go to the python.org. When you go to the python.org, actually you can see here which is the latest version. To get the latest version, you just need to go to the download tab. Okay, so you can see here if you are going to the download tab, the latest version is the Python 3.8.3. okay. ओके, तो सबसे पहले क्या करना है? अगर आपको पाइथन का अगर आपको यूज करना है पाइथन, अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है, तो सबसे पहले इफ यू हैव द लैपटॉप विथ यू, अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या और ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज विंडोज है, लिनक्स है, तो एनी लैंग्वेज, ऑन एनी लैंग्वेज यू कैन रन द पाइथन कोड.
because Python is a cross platform language. क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है? क्लास प्लेटफॉर्म मतलब होता है कि अगर आपने एक प्रोग्राम किया विंडोज में, ओके, पाइथन का एक प्रोग्राम किया विंडोज में और वही प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया आपके लिनक्स में या मैकिंटोश में, तो इट गिव द सेम आउटपुट, इट गिव द सेम आउटपुट। अगर सेम, बिल्कुल एक लाइन भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, अगर वैसे का वैसा प्रोग्राम अगर आपका विंडोज में भी चलता है, लिनक्स में भी चलता है, मैक में भी चलता है, तो यू कैन से दैट my language is a cross platform language. ओके, तो स्टार्ट कैसे करना है पाइथन? अगर मुझे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कैसे करेंगे? तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा python.org में और आपको क्लिक करना पड़ेगा डाउनलोड्स में। जैसे आप डाउनलोड्स में करोगे तो आपको वहां पे ऑल रिलीजेस के ऊपर जैसे आप अगर जाते हो तो वहां पे आएगा डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन। लेटेस्ट वर्जन अभी मेरा जो है वो मैक मशीन है, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली इट इज डिटेक्टेड, तो ये आएगा मैक ओएस एक्स। ओके, मतलब क्या है? इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम इट विल प्रोवाइड दिस डाउनलोड बटन। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आएगा वहां पे डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर द विंडोज। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो आएगा डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर द लिनक्स। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो आपको ये डाउनलोड पाइथन 3.8.3 इसके ऊपर क्लिक करना होगा। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, actually one exe file will be get created. So I think most of the peoples are having, most students are having the your version as a your ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन एज अ विंडोज। तो विंडोज अगर है तो आपको जाना पड़ेगा ये विंडोज में। जैसे आप विंडोज में जाओगे तो वहां पे आपको ये आएगा आपका यहाँ पे विंडोज x86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, ये आपको सिलेक्ट करना है। मैं थोड़ा आपको इंक्रीज कर रहा हूँ फॉन्ट, आपको ये यूज करना है। क्या करना है? डाउनलोड x86 64 बिट एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। अभी एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर मतलब exe फाइल है, वहां पे आप डबल क्लिक करोगे और वहां पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, इट इज अ वेरी सिंपल इंस्टॉलेशन। ओके, इट इज वेरी सिंपल इंस्टॉलेशन। मैं आपको एक बार एक इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ। then after that actually my operating system is the windows operating system. I will share you one video, मैं आपको बाद में एक शेयर करूंगा वीडियो, विंडोज के ऊपर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। क्योंकि अभी मैं इंस्टॉल करता हूँ पाइथन तो क्या होगा, वहां पे मैक का पूरा आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको विंडोज का प्रोसेस अगर करना है तो यू कैन गो टू योर यूट्यूब और आई विल शेयर दैट वीडियो अगेन। ओके, तो अभी मेरा मैक ओप मशीन है तो मैं कर रहा हूँ डाउनलोड पाइथन 3.8.3। जैसे ही मैं डाउनलोड करूंगा तो ये देखो यहाँ पे पीकेजी फाइल आ गया। अभी मेरा पीकेजी फाइल क्यों आया? क्योंकि मैक मशीन है। वही अगर आपका विंडोज मशीन है तो वहां पे आएगा exe फाइल। ओके, वहां पे आएगा exe फाइल। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डाउनलोड्स में यहाँ पे सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे तो वहाँ पे एक पाइथन यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका पैकेज फाइल यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ये पैकेज फाइल आपका डाउनलोड होने डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू डबल क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, वहां पे वो पूछेगा कि व्हाट इज कस्टम इंस्टॉलेशन करना है या आपको जैसे डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन करना है। तो आपको डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन यूज करना है। उसके नीचे एक होगा आपका कि ऐड पाथ टू योर कंप्यूटर, तो हमें ऐड पार्ट टू कंप्यूटर ये भी आपको करना है। ये करने के बाद में यू जस्ट नीड टू प्रेस नेक्स्ट 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 और फिनिश। जैसे आपने किया यू विल हैव योर पाइथन गेट इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर। वेरी इजी इंस्टॉलेशन। आप जैसे गेम इंस्टॉलेशन करते हो, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हो, द सेम इंस्टॉलेशन दिस पाइथन इज हैविंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द हाउ टू चेक दैट। आपने अभी ये पूरा किया, exe फाइल तो आपने डाउनलोड किया, आपने डबल क्लिक किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी आपको करना है कि चेक करना है कि पाइथन इंस्टॉलेशन हुआ कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक?
तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में। ओके, सो दिस इज एक्चुअली माय टर्मिनल विंडो। अब ये टर्मिनल विंडो मेरा मैक मशीन में, वही आपको विंडोज में आएगा कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो द कमांड प्रॉम्प्ट? टाइप यस। अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट, विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट पता है ना, तो टाइप यस। यस यस, ऑल ऑफ यू नो। कमांड प्रॉम्प्ट जिनको पता नहीं है, क्या करना है, विंडोज आर प्रेस करना है और वहां पे cmd टाइप करना है और गो टू द एक्सेसरीज, स्टार्ट एक्सेसरीज, और वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट रहता है। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब दिस ब्लैक विंडो, ओके, वेयर यू कैन टाइप योर कमांड्स हियर। ओके, वहां पे आप कमांड टाइप कर सकते हो। ओके, विंडोज की कमांड जो होती है वो डिफरेंस होती है। लिनक्स कमांड एंड मैक कमांड्स आर द समवॉट डिफरेंट कमांड। मैं वो भी आपको एक बार एक सेशन लूंगा कि हाउ टू, व्हाट आर द डिफरेंट कमांड्स ऑफ योर विंडोज एंड व्हाट आर द डिफरेंट कमांड्स ऑफ योर लिनक्स। लेकिन थोड़े जो हमें लगेंगे अभी, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी फर्स्ट कमांड यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ ls कमांड। ओके, सबसे पहले कौन सा कमांड है? ls कमांड। अभी ls कमांड क्या करता है? इट लिस्ट द ऑल द फाइल्स एंड द फोल्डर, लिस्ट फाइल्स एंड द फोल्डर। ओके, तो ls आ गया वहां पे, ये देखो। सो इट लिस्ट द ऑल द फाइल्स एंड, मतलब क्या है कि यहाँ पे कि कौन कौन से फाइल्स और फोल्डर से मेरे डायरेक्टरी में, वो करने के लिए मुझे ls कमांड है। ओके, सो क्लियर कमांड इज जनरली यूज टू क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्लियर है। अभी देखो, अभी जितने भी लोग है ना वो GUI यूज करते हैं, लेकिन अगर आप 2000 से पहले अगर आप करते हो ना, अभी 2000 में तो आपको क्या पता, आप 2-3 साल के, 5-6 साल के रहेंगे। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग द कंप्यूटर एक्चुअली, सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था वहां पे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको करना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, तो आपको सबसे पहले आपको कमांड पता होना चाहिए था। तो सबसे पहले ls कमांड है। तो ls कमांड क्या करता है? इट लिस्ट द डायरेक्टरी। कैन एनीबॉडी टेल मी which is the equivalent command of the to his ls? जैसे ls मैंने लिनक्स में किया, उस तरीके का एक कोई इक्विवेलेंट कमांड है क्या? Yes, Aditya Bodhankar says dir. Yeah, dir is the correct answer. Dir actually is used to list the directory structure of your all the your folder. जो भी आप जिस भी फोल्डर में हो ना आप, तो उसको उसमें क्या क्या है सब आप जैसे डबल क्लिक करते हो, dir is nothing but your double click. ओके, तो ls क्या होता है? ls भी सेम ही होता है। ls means list all the files and folders. Okay, so now next one is the अभी ये तो हमने ls कर लिया। ओके, तो अभी हमें करना है यहाँ पे कि पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं वो चेक करना है। तो कैसे करेंगे? पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं वो चेक करें, तो चेक करने के लिए सबसे पहले तो मुझे टाइप करना पड़ेगा पाइथन। ओके, सबसे पहले करना पड़ेगा पाइथन। तो पाइथन जैसे मैंने किया, तो वहां पे मुझे करना पड़ेगा डैश डैश वर्जन। डू एबल टू सी दिस कमांड्स? विजिबल है या थोड़ा फॉन्ट बढ़ाओ? इज इट विजिबल? डज आई नीड टू इंक्रीज द फॉन्ट? ओके, विजिबल है। तो ये देखो, पाइथन माइनस माइनस वर्जन। तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि हमने कौन सा पाइथन का वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है मेरे कंप्यूटर में। ऐसे भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पाइथन किसी ने इंस्टॉल करके रखा है, तो नो नीड टू इंस्टॉल इट अगेन। तो बिफोर इंस्टॉलेशन ऑलवेज गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेक इट पाइथन माइनस माइनस वर्जन। जैसे आप पाइथन माइनस माइनस वर्जन करोगे, तो वहां पे आ जाएगा पाइथन का वर्जन। अभी देखो, पाइथन मेरे इसमें पाइथन 2.7.16। नाउ इन माय कंप्यूटर एक्चुअली देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ माय पाइथन हैज बीन इंस्टॉल्ड। एक है पाइथन 2 जिसका वर्जन है पाइथन 2.7.16, and the second version of my Python I can access by using the command python 3. Okay, तो python 3 माइनस माइनस वर्जन आपके कंप्यूटर में अगर फर्स्ट टाइम पाइथन अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो पाइथन ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके इसमें ऑलरेडी वन पाइथन ऑलरेडी 2.7 हैज बीन इंस्टॉल्ड, अगर आप नया पाइथन इंस्टॉल करते हो तो आपको उसका यू कैन एक्सेस इट बाय यूजिंग द नेम एज अ पाइथन 3। ओके,
तो देखते हैं पाइथन 3 का। ओके, तो पाइथन 3 का वर्जन कितना है? 3.8.3. So you can say here my Python is having the two types. First one is a Python, second one is a Python 3. So Python matlab Python 2.7 and the Python 3 means Python 3.8. So got it? So Python कैसे करना है, Python कैसे चेक करना है, समझ में आया? Python 3 माइनस वर्जन. Okay, so got it. Now next one is the, अभी हम फर्स्ट प्रोग्राम करते हैं. Okay, we'll try the first program. तो फर्स्ट प्रोग्राम करने के लिए पहले तो हमें पाइथन के टर्मिनल में जाना पड़ेगा. तो पाइथन के टर्मिनल में जाना पड़ेगा तो हमें करना पड़ेगा पाइथन 3 ऐसे टाइप करना पड़ेगा. जैसे में पाइथन 3 ऐसे मैंने क्लिक किया तो क्या होगा, जैसे टाइप किया और एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे पाइथन के मैं अपने प्रॉम्प्ट में चला गया. सबसे पहले प्रॉम्प्ट था आपका कमांड प्रॉम्प्ट था ऐसे %. अभी प्रॉम्प्ट है मेरा ये 3 ग्रेटर देन सिंबल. जैसे आप 3 ग्रेटर देन सिंबल में ऐसे जाते हो, इस प्रॉम्प्ट में जाते हो तो आप बोल सकते हो कि मैं अभी पाइथन के प्रॉम्प्ट में हूँ. ओके, कौन से प्रॉम्प्ट में हूँ? पाइथन के प्रॉम्प्ट में हूँ. अभी ये पाइथन में प्रॉम्प्ट पे हूँ, अभी मुझे कुछ प्रोग्रामिंग करना है. ओके, पाइथन का प्रोग्रामिंग अगर मुझे करना है तो पाइथन का प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे? तो सर स्टार्ट करना पड़ेगा जैसे हमने सी लैंग्वेज में स्टार्ट किया था. जैसे वी स्टार्ट विद द डेटा टाइप्स, देन we start with the main function, then we start with the different function like printf, scanf, इस तरीके से. तो उसी तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे. तो सबसे पहले हम करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल. ओके, वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे? ओके, तो वेरिएबल क्रिएट करना एकदम इजी होता है, एकदम इजी. So you can create the variable, you can create the variable by only typing the variable name. So variable name and whatever the value you want to store inside it. Suppose I want to store the 5 inside it. So just type a equal to 5. Now a is my variable name and the 5 is the value to be stored inside the variable a. जैसे ही मैं a equal to 5 करता हूँ तो क्या होता है? जैसे मैं a equal to 5 करता हूँ तो क्या होगा कि the value, the variable a get created with the value 5. अभी यहाँ पे आप बोलोगे सर आपने डेटा टाइप तो दिया नहीं, जैसे हम सी लैंग्वेज में देते हैं इंटीजर a इज इक्वल टू 5. यहाँ पे मैंने डेटा टाइप दिया नहीं. तो पाइथन का यही एक एडवांटेज है कि व्हेन यू आर स्टोरिंग एनी वैल्यू इनसाइड एनी वेरिएबल, that value decides the data type of that variable. So that's why you don't need to give the data type to the variable. अगर आप ऐसे करते हो name is equal to Ganesh, if you are giving name is equal to Ganesh, it means that now what is the data type of the name? The data type of the name becomes str, that is string. Now if you are not character, it is string. If a equal to 5 करते हो तो what is the data type of a? The data type of a is integer. If you are giving b is equal to 3.5, then the data type of the b is the float here. Got it? So you can give any, you can store the any value, you can store the any value into any variable. Now no need to give here the data type while declaring that variable. Okay, so got it? So first quickly we will do one program. Suppose here I'm doing one program as a is equal to suppose 10, a is equal to 10 and b is equal to 20. A is equal to 10 and b is equal to 20. Now here I have created the two variable name as a and b having the value 10 and 20. Now if I want to add these two numbers, then how to add it? C is equal to a plus b. Very simple. Now you have the c value. You are creating the new variable c. Now what is the data type of the c? You have not mentioned, but it is automatically taken by that expression. Okay, तो क्या होगा? a plus b होगा. a plus b का 10 इंटीजर प्लस इंटीजर, रिजल्ट इज इंटीजर. अगर आपका रिजल्ट इंटीजर आता है तो c में भी इंटीजर ही स्टोर होगा, तो c का जो डेटा टाइप होगा वो भी इंटीजर ही होगा. गॉट इट? तो
अगर आपको अभी क्या करना है, आपको सी की वैल्यू प्रिंट करना है, तो सी की वैल्यू प्रिंट करने के लिए देयर इज अ फंक्शन नेम एज अ प्रिंट फंक्शन। यहाँ पे प्रिंट एफ नहीं है, फंक्शन का क्या नाम है, प्रिंट है। तो प्रिंट यहाँ पे करना है, प्रिंट करने के बाद में आपको देना है सपोज सी इज इक्वल टू and double quote and then comma and then after that c. Okay, so c is equal to c. So it means that here whenever you are outputting this type of the your output, आपको जो भी आपको करना है वहां पे पहले देना है। हम यहाँ पे यही अगर सी लैंग्वेज का होता तो हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ सी इक्वल टू परसेंटेज डी एंड देन सी। यहाँ पे कोई हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर देने की जरूरत नहीं है। whatever the value of c, whatever the value of c will be get replaced after that equal to। यहाँ पे एक क्वेश्चन है विशाल चौधरी, इज सेमीकोलन रिक्वायर्ड? नो, we don't require the semicolon here. The Java, your C and C++ require the semicolon. That semicolon represent it is the end of your statement. But in Python, we don't need the semicolon. We can give semicolon. That is a different. Actually, मैं बताऊंगा आपको semicolon किस time में देना है आपको. We can give, but there is no need for the semicolon here. The compiler doesn't need that semicolon. आप जब नया line enter करते हो तो that is the end of your statement here. तो आउटपुट क्या आएगा अभी, c is equal to 13, you will get a c is equal to 13. So everyone get it? So we'll take some questions. सर डिक्लेरेशन के पहले हमने जो कमांड लिखे हैं क्या वो हटा सकते हैं? अभी दिस इज नॉट अ प्रोग्राम दैट वी आर राइटिंग। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम में एज अ प्रोग्राम फाइल नहीं लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया है, कमांड प्रॉम्प्ट में एक के बाद एक कमांड दे रहा हूँ। इट इज जस्ट ये हम क्यों देख सकते हैं, क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। आपने अगर मैटलैब सीखा होगा, कुछ स्क्रिप्टिंग सीखा होगा, स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि फर्स्ट कमांड लाइन कमांड गेट एग्जीक्यूट, देन सेकंड गेट एग्जीक्यूट, देन थर्ड गेट एग्जीक्यूट। तो इसीलिए हम एक के बाद एक दे सकते हैं। सी लैंग्वेज में ऐसे नहीं कर सकते। ओके तो इसीलिए अभी हम ये करेंगे, नेक्स्ट हम वही करेंगे कि वी आर राइटिंग द होल प्रोग्राम एज अ सेपरेट फाइल एंड वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दैट फाइल डायरेक्टली। ओके यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक एक कमांड यहाँ पे दे रहे हैं। सर एज यू डिक्लेयर टू वेरिएबल ऑफ द सेम नेम इट विल हैपन। क्या है, निखिल जगवानी सर, as you declare two variable of same name what will happen? No, not happen anyway। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने a इक्वल टू 5 लिया, उसके बाद में a इक्वल टू 10 लिया, तो क्या होगा, a का जो वैल्यू था 5 वो हट जाएगा और a में अभी 10 स्टोर हो जाएगा। एक्चुअली बैकग्राउंड में अलग होता है। बैकग्राउंड में 5 is stored at the another memory location, 10 is stored at the another memory location। now पहले क्या होता था, a is pointing to that 5, नेक्स्ट टाइम अगर आप a इक्वल टू 10 करते हो तो क्या होगा, नाउ a स्टार्ट पॉइंटिंग टू 10। मैं एक थोड़ा आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ वन व्हाइट बोर्ड। ओके तो सबसे पहले क्या किया आपने, a इज इक्वल टू 5 किया। जैसे आपने a इक्वल टू 5 किया तो क्या होता है, दिस इज a and here this is the location where actually the 5 gets stored, where the 5 gets stored, and now a is pointing to this a। ओके ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जे आप क्या करोगे, आप क्या कर रहे हो, a इज इक्वल टू 10। जैसे आपने a इक्वल टू 10 किया तो क्या होता है, एक नया मेमोरी एलोकेट होगा, द न्यू मेमोरी गेट एलोकेटेड which contains the value 10, which contains the value 10 inside it, and now this a is pointing to, now a is pointing to this new variable। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस नहीं होगा जैसे सी लैंग्वेज में होता है। देखो सी लैंग्वेज में क्या होता है कि सेम वेरिएबल में, इन सेम वेरिएबल एक्चुअली इन सेम वेरिएबल योर वैल्यू गेट रिप्लेस। लेकिन पाइथन में थोड़ा अलग मेमोरी मैनेजमेंट पे। पाइथन में क्या होता है, जब भी आप नया कोई वैल्यू लेते हो ना तो द न्यू वैल्यू गेट स्टोर्ड एट द न्यू मेमोरी लोकेशन। तो आप बोलोगे सर ये प्रीवियस वाला ए का क्या होगा, नाउ इसके साथ क्या होगा, दिस इज गेट
no more exist, but this memory exist. अब ये memory तो आपके memory में तो है, RAM memory में तो file तो already stored है, but this memory is not pointing by anyone. तो ये memory के साथ क्या होगा? अब ये file तो है already stored, लेकिन ये memory में memory is not pointing to anyone. So what happened with this memory? Can anybody tell me? ए पहले पॉइंट कर रहा था 5 को, अभी बाद में ए पॉइंट किया 10 को, लेकिन 5 तो ऑलरेडी है मेमोरी में, उसके साथ क्या होगा? जो करेक्ट आंसर देगा ना, ओके ओके, द करेक्ट आंसर इज दी नॉट garbage value. No, I require the exact value, exact answer. Garbage memory, maybe it become garbage value, memory get destroyed. Yeah, the correct answer, Aditya Bodhankar has given the correct answer. It is garbage collected. Okay, so have you actually कभी सुना है आपने यहाँ पे एक गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? व्हाट इज एन गार्बेज कलेक्टर? गार्बेज कलेक्टर एक्चुअली प्रेजेंट इन योर जावा, इट इज नॉट प्रेजेंट इन सी एंड सी प्लस प्लस. क्या करता है गार्बेज कलेक्टर? अब ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली मेमोरी में घूमता रहता है. ओके, इट विल कॉल आफ्टर सम टाइम एंड इट विल सर्च दैट which memory is there which has been allocated by your program, and that memory is not pointing by anyone. okay, ऐसा कौन सा मेमोरी है कि वो अलोकेट तो किया है लेकिन उसको अभी कोई पॉइंटर ही नहीं है, कोई रेफरेंस ही नहीं है उसका? तो कौन सा मेमोरी कौन सा मेमोरी है कि वो हम कर सकते हैं, गार्बेज कलेक्टेड कर सकते हैं? सो इट विल फाइंड आउट ऑल द मेमोरी and that memory get destroyed by the garbage collector. So garbage collector is responsible for it. So Java, as the Java has the garbage collector, your Python is also having the garbage collector. Python is also having the garbage collector. Okay, so got it, this memory management concept. Okay, so I can check it here with the one okay, so suppose name is equal to, first I have given the name is equal to Ganesh. Okay, so if I'm printing the name, how to print the name? Yeah, very simple, print name and Ganesh. Okay, so Ganesh will be get printed. So how to find out the address of the your variable? To find out the address of the variable, actually there is a function name as a id. Okay, अगर आपको एड्रेस चाहिए, अगर सी लैंग्वेज में एड्रेस अगर हमें चाहिए तो हम यूज करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ampersand operator. But in Python, actually to get the address of any variable, you require to execute this command id of that variable. So id of that variable represent that the memory address of that particular variable, memory address, memory location address. Got it? Okay, so there is one question again. Suppose I'm doing here name is equal to Ganesh. Okay, तो अभी मैं कर रहा हूं यहाँ पे str is equal to Ganesh. str is equal to Ganesh. So can anybody tell me actually what is the address of str? What is address of str? Is it same as that of your name, or is it the different memory location? Yes, Kushwan, different, same. Vinayak God says same, different memory location. Okay, different. Yes. So again, I will
go back to that whiteboard to explain this particular thing. Okay, so actually what happened, what I have done here. So first there is a variable name as a name which contains the string as a Ganesh. Okay, so and it means that now the name is pointing to Ganesh. The name is pointing to Ganesh. Got it? Now what happened? आपने क्या किया अभी नेक्स्ट टाइम किया आपने str is equal to Ganesh. तो क्या होगा str is equal to Ganesh. तो C language में क्या होता है? In C language the new memory is allocated and it contains Ganesh. But in Python actually one very efficient memory management is there. Python क्या बोलता है? Okay, str में क्या स्टोर करना है? गणेश स्टोर करना है. बट गणेश तो ऑलरेडी स्टोर है. गणेश तो ऑलरेडी स्टोर है ना, तो मैं क्यों नया मेमोरी वेस्ट करूं? सी लैंग्वेज क्या करता है? नया मेमोरी एलोकेट करता है, उसमें गणेश स्टोर करेगा. So it means that it is wasting of memory. The two memories having the same content. लेकिन पाइथन बोलता है नहीं नहीं, मेमोरी वेस्टिंग नहीं करना है. तो जब भी आप str is equal to Ganesh, same string that is already exist, अगर आप करते हो तो क्या होता है? Now str is also start pointing to the same memory location. Got it? अगर आप दूसरा कोई वेरिएबल बनाते हो, for example you are giving the another variable as a str2, str3, then str3 is equal to Ganesh अगर आप करते हो तो क्या होगा? str3 is also start pointing to Ganesh. तो this memory can have the number of the pointers. कितने भी पॉइंटर या कितने भी रेफरेंस यहाँ पे रह सकते हैं. ऐसे कोई कंपल्शन नहीं कि एक या दो या तीन है. ऐसे हंड्रेड्स ऑफ द रेफरेंस दिस वन इज हैविंग. ओके, तो गॉट इट. तो एक क्वेश्चन है मेरा. तो आईडी ऑफ, अगर मैं ये प्रूव कैसे करेंगे हम? ये प्रूव करने के लिए हमें आईडी ऑफ क्या करना पड़ेगा? आईडी ऑफ एसटीआर करना पड़ेगा. जैसे ही मैं आईडी ऑफ एसटीआर करूंगा तो सेम ही आउटपुट आना चाहिए. सो you can see here this memory location and this memory location both are same. Okay, now if this is both are same, then you can say that our assumption is the very right. Our assumption is very right. Okay, so it is, we're not clearing this. Let's just exit and clear and again Python 3. Okay, so got it. तो एक क्वेश्चन है अगेन. सपोज नेम इज इक्वल टू, मैंने किया गणेश और यहाँ पे किया str इज इक्वल टू सपोज गणेश. ओके, और मैं यहाँ पे करता हूँ नेम इज इक्वल टू अत्तर दे. ओके, नेम इज इक्वल टू अत्तर दे. एंड इफ आई एम प्रिंटिंग नेम, what is the output? And if I am printing str, what is the output? Can you tell me? Okay, output is both name str. तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले नेम, उसके बाद में str है, तो क्या होगा? ओनली उत्तर दे और 2 times उत्तर दे. Okay, so we'll see the output. I think the output, मेरा भी मैं बोल देता हूँ आउटपुट क्या होगा. मेरे ख्याल से आउटपुट होगा फर्स्टली अत्तर दे एंड द सेकंड वन इज द गणेश. Okay, so output is same, the अत्तर दे and the गणेश. So what happened here? यहाँ पे क्या हुआ? आपने पहले तो str भी पॉइंट कर रहा था सेम को, नेम भी पॉइंट कर रहा था गणेश को ही, बाद में आपने किया नेम इज इक्वल टू अत्तर दे. तो व्हाट हैपेंड? यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे इस तरीके से हुआ. तो देखो सबसे पहले क्या था? ये था नेम एंड str इज पॉइंटिंग टू गणेश. अभी आपने क्या किया? एक नया
नया मेमोरी लोकेशन किया, because it is a different string, so it contains the attarde. And now you are doing, आपने क्या किया यहाँ पे, name is equal to attarde. Now this name is not pointing to, now this name is not pointing to here, यहाँ पे नेम पॉइंट नहीं कर रहा है, और नेम किसको पॉइंट करेगा अभी, नाउ नेम इज पॉइंटिंग टू अत्तरदे. Name start pointing to attarde. When the name start pointing to attarde, you can say that now str is a different string and the name is a different string. अगर आप नेम प्रिंट करते हो तो अत्तरदे आएगा, str प्रिंट करे तो अत्तरदे. So that memory is not, this memory is not modified. नया मेमोरी एलोकेट है, नया कंटेंट आया, नया मेमोरी, नया कंटेंट आया, नया मेमोरी है. वही अगर, यही अगर अपने सी लैंग्वेज में होता तो आउटपुट आता अत्तरदे अत्तरदे. ओके, आउटपुट आता अत्तरदे एंड अत्तरदे. इस सी एंड सी प्लस प्लस में अगर यही होता तो सेम कोड इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग. बट इन अ पाइथन एक्चुअली you will have the, actually a new memory is get allocated, and that name pointer is now allocated to the new memory. So got it? Is it useful? Yes, 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 yes. Now the next one is the how to take a user input. Okay, user से input, ये important है, very important. अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो. यूजर से इनपुट कैसे लिया जाए, जैसे scanf हम यूज करते हैं. ओके, इफ आई एम यूजिंग द scanf फंक्शन, तो scanf से अगर मुझे यूज करता है, यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, तो वही पाइथन में कैसे यूज करते हैं हम देखते हैं. सो देर इज वन फंक्शन नेम एज अ इनपुट. ओके, देर इज वन फंक्शन नेम एज अ इनपुट. एक इनपुट नाम का फंक्शन है, उससे हम क्या कर सकते हैं, हम स्कैन कर सकते हैं. ओके, तो क्या स्कैन कर, यूजर्स जो भी देगा ना वो स्कैन करेंगे, लेकिन इनपुट में हमें यहाँ पे मैसेज देना होता है, एंटर एनी नंबर. ओके, एंटर एनी नंबर. ओके, तो यहाँ पे मैं करूंगा इनपुट एंटर एनी नंबर. जैसे मैं इनपुट एनी नंबर करूंगा तो ये रिटर्न देगा कुछ, तो जो यूजर देगा, जो यूजर देगा वो कुछ कुछ तो इंटर, जो यूजर एंटर करेगा वो इनपुट देगा. तो मैं करूंगा a इज इक्वल टू इनपुट एंटर एनी नंबर. तो जैसे मैंने एंटर एनी नंबर किया तो क्या करेगा, जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इट विल आस्क दैट. यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे एंटर एनी नंबर करेंगे. जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो सपोज मैंने एंटर किया 45, मैंने एंटर किया 45, तो 45 जैसे एंटर किया, नाउ a इज इक्वल टू 45. यू कैन चेक दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a. आप a का वैल्यू चेक कर सकते हो. नाउ a इज इक्वल टू 45. गॉट इट? अगर आपको दूसरा नंबर करना है तो दूसरा नंबर करने के लिए फिर से आप इस तरीके से कर सकते हो, एंटर एनी नंबर. ओके, तो पहले एंटर एनी नंबर किया तो ये आ जाएगा आपका 45 55. ओके, तो अगर आपको b का भी चेक करना है तो b का भी चेक कर सकते हो. तो b का वैल्यू हो गया 55. Got it? So a is equal to 45, b is equal to 45. So can you tell me, abhi, can you tell me what is the value of c if I am printing the c? Hundred, 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 yes, hundred, hundred, hundred. Yeah. So we'll see the output. Okay, देखते हैं हम output देखते हैं. Some of you has given the correct answer. Check करो आपका correct answer है क्या. The correct answer is 4555. Okay, the Aditya Bodhankar has given the correct answer firstly. Okay, 4555. Okay, so 4555 means why 455? Why not addition? Addition क्यों नहीं हुआ? Why not there is addition? A plus B का अगर मैं करता हूँ तो addition तो होना ही चाहिए, लेकिन addition तो नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? मानसी बोल रही why? क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे नहीं होने का कारण ऐसा है कि नाउ दिस 45 आपने इनपुट लिया,
a इज इक्वल टू इनपुट, a इज इक्वल टू इनपुट, एंटर एनी नंबर। आपने जैसे ये इनपुट लेते हैं तो ये जो होगा ना, इनपुट फंक्शन विल रिटर्न अ स्ट्रिंग, इनपुट फंक्शन विल रिटर्न अ स्ट्रिंग। तो मतलब ये जो a का टाइप है ना, ये a का जो टाइप है, वेरिएबल a का टाइप है, वो इंटीजर नहीं है, ये क्या टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है। मतलब आप जो भी इनपुट दोगे वो स्ट्रिंग में ही होगा। तो 45 क्या हो गया, 45 है आपका स्ट्रिंग, 55 क्या है, इट इज ए स्ट्रिंग। मतलब ए और बी दोनों स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग स्ट्रिंग ये होता है। तो 45 स्ट्रिंग प्लस 55 स्ट्रिंग, the result is 45 55, it is string get concatenate। तो स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन के लिए भी हम प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो a प्लस b, the result is 45 55। so how to correct it? अगर इनपुट फंक्शन दे रहा है हमें आउटपुट स्ट्रिंग, तो मुझे वो इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे वो कैसे करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट इनटू द स्ट्रिंग? तो करने के लिए फिर से मैं एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ। ओके तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी एक वेरिएबल लेना है a इज इक्वल टू, यूजर से लेना है, इनपुट से लेना है, और उसको बोलना है कि एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, लेकिन ये जो इनपुट आएगा वो तो स्ट्रिंग में आएगा, लेकिन वो स्ट्रिंग नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, वो इंटीजर में चाहिए। तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आई नीड टू कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग इनटू द इंटीजर। सो हाउ टू कन्वर्ट, वी नीड टू डू द टाइप कास्टिंग। तो हमें वो टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्ट्रिंग को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो एक INT ऐसे करना है आपको, और INT करने के बाद में इनपुट फंक्शन आपको उसमें देना है। जैसे आप इनपुट INT में दोगे तो क्या होगा, जो भी आप इनपुट डालोगे वो फर्स्टली स्कैन होगा स्ट्रिंग में, बट इट इज कन्वर्टेड इनटू द इंट, और जो भी इंट होगा वो कॉपी हो जाएगा ए में। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 45 मैंने दिया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ए जो होगा वो अभी इंटीजर होगा, ए इज नॉट अ स्ट्रिंग हियर। अभी वही इसी तरीके से मैं बी भी स्कैन कर रहा हूँ इंटीजर, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इनपुट, और मैं कर रहा हूँ एंटर दी सेकंड नंबर। जैसे मैं एंटर दी सेकंड नंबर करता हूँ तो फिर से मैं 55 दूंगा। ओके तो हो गया आपका ए और बी अभी इंटीजर है। तो मैं अगर c इज इक्वल टू a प्लस बी करता हूँ, सो व्हाट इज द नाउ आंसर, 45 प्लस 55, द आंसर शुड बी 100। सो लेट्स चेक इट, द आंसर इज 100 और नॉट। yeah, you can check it here, the answer is the 100, it is a correct answer। तो याद रखना है अभी आपको कि अगर आप इनपुट फंक्शन आप अगर आप यूज करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू टाइप कास्ट इट विद द इंटीजर वेरिएबल। आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से करना होगा। मैं आपको अभी आपके चार्ट विंडो में आपको ये डाल रहा हूँ कि ये कैसे करेक्ट किया मैंने। ओके तो पहले इंट, उसके बाद में इनपुट फंक्शन आपको देना है। सो इट इज टाइप, इट इज नोन एज अ टाइप कास्टिंग। सो गॉट इट, समझ में आया आपको सभी को? ओके सो हाउ टू टर्मिनेट फ्रॉम दिस विंडो, अगर आप पाइथन के अंदर चले गए, आपको बाहर आना है, तो कैसे आए करोगे आप, तो सबसे पहले आपको टाइप करना है एग्जिट, और उसके बाद में ब्रैकेट। तो ये फंक्शन है एग्जिट फंक्शन। तो यूजिंग द एग्जिट फंक्शन यू कैन गेट आउट ऑफ दैट पाइथन टर्मिनल। जैसे आप पाइथन टर्मिनल आ गए तो आपका नॉर्मल प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज द, इफ यू आर हाउ टू टाइप द, हाउ टू क्रिएट दी योर फाइल प्रोग्राम। अभी ये हमने जो भी किया ना वो टर्मिनल में किया, अभी हमें करना है, किसमें करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है, और ये फाइल हमें एग्जीक्यूट करनी है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना होगा, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा नोटपैड ओपन करके उसमें प्रोग्राम टाइप करना पड़ेगा। लेकिन सपोज आप लिनक्स में हो या मैक में हो तो डायरेक्टली देयर इज वन एडिटर इज अवेलेबल नोन एज अ नैनो एडिटर। ओके ये नैनो एडिटर एकदम सिंपल एडिटर है, जस्ट लाइक यूर विंडो, जस्ट लाइक यूर नोटपैड।
विंडोज में आप ये नैनो यूज नहीं कर सकते। विंडोज में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोटपैड यूज करना पड़ेगा। नोटपैड सभी को पता ही होगा, एक्सेसरीज में जाके नोटपैड ओपन करो, वहां पे प्रोग्राम टाइप करो, सेव करो, उसके बाद में ये क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप लिनक्स में हो, मैक में हो, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली नैनो यूज करके आप कर सकते हो। तो नैनो आपको करना है, नैनो इज अ एडिटर नेम एंड व्हाट इज माय फाइल नेम, माय फाइल नेम इज द माय और ये, हाँ, my hello.py. Okay, so my hello.py, this is my first file. जैसे मैं करूंगा तो ये देखो, आप नैनो टर्मिनल में चले गए, जैसे आप विंडो नोटपैड में जाते हो उसी तरीके का एक सिंपल एक एडिटर है यहाँ पे, नैनो एडिटर। वहां पे जैसे मैं टाइप कर सकता हूँ उस तरीके से, एकदम सिंपल है, नोटपैड जैसे होता है उसी तरीके का ये आपका एडिटर है। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्रोग्राम टाइप करना होगा। तो टाइप करने के लिए आपको करना होगा a इज इक्वल टू INT एंड देन उसके बाद में इनपुट, उसके बाद में ब्रैकेट दे के आपको देना होगा एंटर दी फर्स्ट नंबर, और उसके बाद में आप देना होगा b इज इक्वल टू इंट, उसके बाद में इनपुट, उसके बाद में एंटर दी सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। अब ए और बी स्कैन हो गए, आपको करना है इस ए प्लस बी, देन okay, there is no printf statement, only print statement। तो आपको देना होगा यहाँ पे एडिशन इज इक्वल टू, और एक ब्रैकेट रहेगा, डबल कोट, डबल कोट एंड देन कॉमा एंड देन सी, एडिशन इज इक्वल टू सी। इस तरीके से आप दे सकते हो। जैसे ही मैंने करूंगा तो ये देखो प्रोग्राम सेव हो गया। ओके, अब ये देखो प्रोग्राम टाइप हो गया, अभी सेव करना है। टाइप सेव करने के लिए कंट्रोल एक्स दबाते हैं, वाई दबाते हैं, एंटर दबाते हैं। ओके, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका विंडोज है तो सिंपल गो टू द नोटपैड, नोटपैड में जाने के बाद में आपका जो फाइल है वो आपको इस डायरेक्टरी में कहीं पे भी जहाँ पे भी है वो आपको सेव करना है। जैसे डी ड्राइव में अगर सेव किया, सी ड्राइव में सेव किया, तो पाथ सिर्फ आपको याद रखना है। उस पाथ में जाने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आप टाइप करना है पाइथन 3, और उसके बाद में पाइथन 3 टाइप करने के बाद में आपको टाइप करना है आपके फाइल का नाम। ओके, जो भी आपका फाइल का नाम है वो पाइथन 3 के आगे आपको डालना होगा एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस एंटर। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो माय हेलो डॉट पाई में जो भी कुछ लिखा होगा, माई हेलो डॉट पाई में जो भी कुछ लिखा होगा वो आपको वहां पे नजर आएगा। आपको लोगे एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने फर्स्ट नंबर दिया 34, सेकंड नंबर किया 56, तो आउटपुट आएगा मेरा addition equal to 90 and my program get terminated। It's a very similar like your C and C++ program। सिर्फ आपको यहाँ पे compilation करने की जरूरत नहीं होता, डायरेक्टली Python 3 इंटरप्रेटर को दो, it will execute your program line by line। very simple one, very simple one। got it? समझ में आया? if you are getting then just type yes। yes शुभम, what taker, आपके पास अगर विंडोज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ नैनो यू हैव टू यूज नोटपैड। ओके, अगर आपके पास विंडोज है तो आप नोटपैड भी यूज कर सकते हो, या जस्ट यू नीड टू ओपन द आइडल। आपको एक आइडल सॉफ्टवेयर, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो आपको डायरेक्टली एक आइडल सॉफ्टवेयर उसके साथ भी आता है। तो आइडल सॉफ्टवेयर में भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग कैसे करना है ये देखो, इट इज जस्ट लाइक योर पाइथन टर्मिनल। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। सपोज a इज इक्वल टू 10, a is equal to 10 and print a।
ओके ये आप डायरेक्टली टर्मिनल में कर सकते हो, या आपको अगर आइडल है तो जस्ट यू नीड टू गो टू द फाइल और उसके बाद में आपको क्लिक करना पड़ेगा न्यू फाइल, नॉट ओपन, आपको क्लिक करना होगा फाइल एंड न्यू फाइल। जैसे आप न्यू फाइल करोगे तो यहाँ पे एक नोटपैड जैसा एक आपको एक विंडो आएगा, नोटपैड जैसा। तो जो भी आपने अभी जो टाइप किया ना वो आपको यहाँ पे अगर आप टाइप करते हो जैसे INT इनपुट, enter the first number and B is equal to INT input, enter second number and C is equal to A plus B, and then print addition is equal to comma C। ओके तो आपको क्या करना है, जैसे आपने इसमें प्रोग्राम टाइप किया तो आपको सेव करना है। अभी सेव नहीं हुआ है क्योंकि इसलिए वो अनटाइटल दिखा रहा है। तो सेव करने के लिए यू जस्ट प्रेस कंट्रोल एस प्रेस करो, या कंट्रोल एस प्रेस करना है, या फाइल में जाके सेव करना है। मैं सेव कर रहा हूँ सपोज यहाँ पे डाउनलोड्स में, यहाँ पे सपोज माय फर्स्ट python.py, माय फर्स्ट python.py, इस तरीके से मैंने सेव किया। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे आपको पूरा पाथ आ जाएगा ऊपर। उसके बाद में आपको रन करना है। तो रन करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर जाना होगा रन में। तो रन करने के बाद में रन मॉड्यूल, या शॉर्टकट भी दिए वहाँ पे, शॉर्टकट दिए F5। जैसे ही आप F5 प्रेस करोगे तो आप जाओगे आपके शेल में, वापिस जाओगे पाइथन शेल में। ओके अभी पहले क्या कहाँ पे थे आप, ये आइडल में थे, आइडल के एडिटर में थे। अभी आप गए शेल में, जैसे आपने रन किया शेल में गए, वहां पे वो पूछ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, तो मैंने फर्स्ट नंबर दिया 56, सेकंड नंबर दिया 78, एंड यू विल गेट आंसर एज अ एडिशन इज इक्वल टू 134। अगर आपको वही प्रोग्राम मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे आप फिर से आ सकते हो। जैसे मैंने C इज इक्वल टू A इंटू B किया, तो मैं करूंगा प्रिंट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू कॉमा C। सिर्फ मॉडिफिकेशन करो, फिर से मॉडिफिकेशन करो। मॉडिफिकेशन करने के बाद में आपको रन करना है। रन कैसे करोगे, F5 प्रेस करो। जैसे में F5 प्रेस करो, F5 जैसे मैंने प्रेस किया तो फिर से वो रनिंग में चला जाएगा। तो मैंने यहाँ किया 6 और दिया यहाँ पे 8 दे दिया, तो आ जाएगा आपका एडिशन 14 एंड द मल्टीप्लीकेशन इज 48। गॉट इट, वेरी इजी वन। ओके तो समज में आया, समजलं सगळ्यांना की प्रोग्रामिंग कसं करायचं। बघा नोटपॅड मध्ये सुद्धा करू शकता, किंवा आयडल हे जे असतं त्या आयडल मध्ये सुद्धा तुम्ही करू शकता। फक्त तुमचं इन्स्टॉलेशन जर प्रॉपर झालं असलं तरच हे होणार आहे, नाहीतर मग प्रॉब्लेम येईल। इन्स्टॉलेशन करताना पाथ व्हेरिएबल तुम्हाला इन्क्लूड करावाच लागेल, ओके, तरच तुम्हाला हे पॉसिबल आहे, किंवा नाहीतर मग फक्त आयडल मध्येच होईल तुमचं। ओके आता अजून एक पायथॉनचा एक ऍडव्हान्टेज एक आपण याच्यामध्ये बघणार आहे इथे। पायथॉनचं जर ऍडव्हान्टेज बघायला झालो, मी फक्त आता इथे माझं याचं टर्मिनल, आयडलचं टर्मिनल शेअर करतोय। तर इथे बघा फायदा काय आहे याचा। इथे कोणी सांगू शकता सी लँग्वेज मध्ये काय प्रॉब्लेम होता? टर्बो सी मध्ये हा प्रॉब्लेम नेहमी यायचा। जसं की कॅन आय डू हिअर 20,000 मल्टीप्लाय बाय दी 7, 20,000 मल्टीप्लाय बाय दी 7 हे जर मी सी लँग्वेज मध्ये केलं तर कॅन आय गेट द आन्सर? In C language, actually there is a problem. Because if you are using Turbo C, the size of your integer is 2 byte. आणि 2 बाईट म्हणजे काय, तर तो मॅक्सिमम जातो 65,536 पर्यंत। म्हणजे त्यामध्ये जास्तीत जास्त 65,536 पर्यंतच असू शकतं, 35 पर्यंत असू शकता। आणि ते अनसाइन असलं तर, जर साइन असलं तर 32,767 पर्यंत राहतात। साईजचा प्रॉब्लेम येतो। पण बघा याच्यामध्ये प्रॉब्लेम कसा नाहीये,
ते बघूया आपण. आता तुम्ही एक नंबर घेतला 20,000 मल्टिप्लाय बाय 7, तर आपल्याला आन्सर आलेला आहे. तेच मी इथे खूप मोठा काहीतरी एक नंबर घेतोय, खूप मोठा नंबर घेतोय आणि त्याला परत त्याला एखाद्या मोठ्या नंबरने मी मल्टिप्लिकेशन करतोय. सो यू विल गेट अ प्रॉपर आन्सर. जर तुम्ही कोणते हे आन्सर आपल्या कोणत्याही कॅल्क्युलेटर वरती करेक्ट आन्सर येणार नाही. आपण आणि हे आन्सर एकदम करेक्ट आहे. जर तुम्ही खरोखर मल्टिप्लिकेशन करून बघितलं तर हे सुद्धा तुम्हाला करेक्ट आन्सर यहाँ पे आएगा. Okay, so actually the Python is a very accurate language and there is no restriction. There is no restriction of your memory. Okay, so in for any scientific calculation also you can do any scientific calculation, just like for example 78 multiply by the 45. Okay, so anything. So, no, but here there is one more special operator is there, that is known as, suppose, okay, make it 12. Okay, can I get the answer? कोणाला आन्सर माहिती आहे? 12 डबल स्टार 2 असं जर मी केलं, so what is the answer? Okay, so answer is correct, 41 44. आता हे डबल स्टार म्हणजे काय की इट इज नोन एज अ रेस टू ऑपरेटर, नोन एज अ रेज टू ऑपरेटर. ओके, रेस टू म्हणजे काय झालं की तुम्हाला तो स्क्वेअर होईल आता इथे, म्हणजे 12 रेस टू 2, 12 रेस टू 2, युअर आन्सर इज 144. ओके, दिस इज द न्यू ऑपरेटर ऍक्च्युअली, न्यू ऑपरेटर. आता याच्यामध्ये एक अजून एक राहतो, मला याचा आन्सर सांगायचं, 45 डिवायडेड बाय 3. व्हॉट इज 45 डिवाइड बाय 3? 15 or 15.0? The answer is 15.0. Okay, the answer is 15. बघा हे सी लँग्वेज मध्ये असतं तर आन्सर 15 आलं असतं. इन सी लँग्वेज द आन्सर इज 15 ओनली, बिकॉज तिथे काय होतं, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज इंटीजर. पण इथे तसं नाहीये. डिव्हिजन ऑपरेशन इज ऑलवेज गिव्ह द रिझल्ट इन टर्म्स ऑफ द फ्लोट. ऍक्युरेट येतो. मग ऍक्युरेट म्हणजे कसं आहे, तुम्ही बघा 46 डिवाइड बाय 3 केल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला ऍक्युरेट रिझल्ट येणार आहे. 46 डिवाइड बाय 3 केलं, ऍक्युरेट रिझल्ट येईल. आणि हेच 46 डिवाइड बाय 3 तुम्ही सी लँग्वेज मध्ये केला तर काय आन्सर येणार आहे? ओनली 15. Okay, so you will get an accurate answer in your Python, just like your calculator. Yeah. Okay, so there is a modulo operator is there. Modulo operator, mighty modulo operator. 56 modulo 2, what is the answer? 56 modulo 2, what is the answer? 0. Yes, correct. The answer is 0, not 23. 56 modulo 2 is the answer is 0. Why? Because it gives the reminder. It gives the reminder. So 56 divided by 2, and whatever the remainder is there, it is get given as a result here. It gives the remainder. So remember that here 56 modulus 2 give the remainder. Okay, but can you tell me what is the answer of 56 divide 2? 2 times I am giving divide. The answer is 28. Okay, so this is again one more new operator in your Python. Double divide represent, it give the quotient. काय देतो हा? क्वेश्चन. म्हणजे तुम्हाला 56 ला 56 ना जर 2 ने डिवाइड केलं तर तुम्हाला आन्सर काय येणार आहे त्याचा क्वेश्चन पार्ट फक्त देतो तो. रिमाइंडर पार्ट कोण देईल? मॉड्युलस ऑपरेटर. क्वेश्चन पार्ट कोण देईल? युअर डबल डॅश और दी डबल ए. सर अँड्रॉइड मध्ये कसं करायचं? अँड्रॉइडचं आपण नंतर बघूया, आता काही प्रॉब्लेम नाही. सो डबल स्लॅश मीन्स, डबल स्लॅश मीन्स क्वेश्चन, and the modulus operator means reminder. Double star means raise to operator. Okay, Vaishnavi Kulkarni, what is the difference between slash मतलब divide and divide to? बघा आता परत एकदा रिवाइज करतोय, ज्यांना समजलं नसेल त्यांच्यासाठी. ज्यांना समजलं नाही त्यांच्यासाठी परत एकदा.
आपण सगळे ऑपरेटर्स परत घेणार आहे. ओके, तर इथे बघा माझा a इक्वल टू 10 आहे आणि b इज इक्वल टू 5 आहे. ओके, a इक्वल टू 2 आहे, 10 आहे, b इक्वल टू 5 आहे. तर मला a प्लस b सांगा काय आन्सर येणार आहे. Print a plus b, the answer is 15, not 105. The answer is 15 because both are integer. If I am doing a minus b, then a minus b, result is 5. Okay. If I am doing a multiply b, a multiply b, 50. Yes, correct. If I am doing a divided by b, a divided by b, the answer is not 2, it is 2.0. It is 2.0. Okay, so these are some basics operator. आता एक स्पेशल ऑपरेटर घेऊया आपण, a मॉड्युलस 2, जो आपल्याला सी लँग्वेज मध्ये सी प्लस प्लस मध्ये आहे तो. a मॉड्युलस 2 रिझल्ट काय देईल. यस, 0. 0 का देतो, कारण 10 डिवाइड बाय 2 काय होतो, 10 डिवाइड बाय 5, 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 केल्यानंतर रिमाइंडर काय येणार आहे, 0 येणार आहे. म्हणून रिमाइंडर मॉड्युलस ऑपरेटर घेऊ, द रिमाइंडर. The next one, the next operator is the your a double slash 2. Now double slash represent, आता सिंगल स्लॅश दिल्यानंतर आन्सर करेक्ट येणार आहे तुमचं. 2.5 असलं तर 2.5 येणार आहे. पण ए डबल स्लॅश काय करतो, इट इज नोन एज अ फ्लोअर डिव्हिजन. याला काय म्हणतात, फ्लोअर डिव्हिजन. फ्लोअर डिव्हिजन मध्ये काय असतो, जे सी लँग्वेज मध्ये जे आन्सर येणार आहे तेच आन्सर तुम्हाला ए डबल स्लॅश 2 ने येणार आहे. ओके, म्हणजे काय, 10 divided by 2, but the point part is not considered. Point part considered nahi zala तर answer काय येणार आहे, 5. The answer is only 5. So remember that double division will give the result in terms of the integer only. The next one is the a double star 2. जसं a double star 2 केल्यानंतर काय येणार आहे, double star 2 represent, it is a raise to operator. 2 झालं होतं, आपण 3 करूया. तर आन्सर काय येणार आहे, ए डबल स्टार 3. ए डबल स्टार 3, the answer is 1000. Why 1000? Because 10 raised to 3 is 1000. Okay, 10 raised to 3 is 1000. So these are some basic operations and new operator. हे बाकी हे नंतरचे जे दोन ऑपरेटर आलेले आहेत ते नवीन ऑपरेटर्स आहे, डबल डिव्हिजन आणि डबल स्टार. ओके, तर हे आहे. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, देयर इज अ होमवर्क. आता होमवर्क मी तुम्हाला इथे देतोय. Okay, homework is very first program, very first example. You can write down this. Write a program to add, subtract, divide, multiply two numbers. Example 2. आता यामध्ये मी तुम्हाला डिसिजन कंट्रोल स्ट्रक्चर तुम्हाला शिकवलं नाहीये, बट यू हॅव टू एक्सप्लोर इट. ओके, आणि एक्सप्लोर करून तुम्हाला किती एक्सप्लोर करता येणार आहे ते मी उद्या बघणार आहे. पण त्याच्यावरचा एक प्रोग्राम देतोय इथे, तो प्रोग्राम तुम्हाला जमतो की नाही जमतो ते मी तुम्हाला इथे तुमच्याकडून करून घेणार आहे. इथे प्रोग्राम, राईट अ प्रोग्राम टू चेक whether the given number is even or odd. Even or odd. हे दुसरा प्रोग्राम आहे. तिसरा प्रोग्राम तुम्हाला करायचा आहे,
write a program to check whether the given year is leap year or not. ओके, जो इयर जे दिलेला आहे ते तुम्हाला लीप इयर आहे की नाही ते चेक करायचं आहे. ओके, तर हे 3 प्रोग्राम जे आहे, 3 प्रोग्राम तुम्हाला ऍज अ होमवर्क मी इथे देतो आहे. प्रत्येकाने हे 3 प्रोग्राम आता उद्या येताना, कल जब आप सामने आओगे तो सबसे पहले आपको ये प्रोग्राम आपके पास चाहिए. मैं वही प्रोग्राम आपको चेक करूंगा. अगर आपके प्रोग्राम सही है तो यू कैन से दैट यू आर इन राइट डायरेक्शन. सो वेरी फर्स्ट वन इज, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है आज. तो अगर आपके पास लैपटॉप है, तो आपको पाइथन इंस्टॉलेशन करना है. उसमें पाइथन इंस्टॉलेशन होने के बाद में यू नीड टू एक्सप्लोर दी आइडल एक्सप्लोर करो. एक्सप्लोर करने के बाद में जस्ट डू द प्रोग्रामिंग. ओके, ये सब आपको करना है. ओके, अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, तो मोबाइल के भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं. पाइथन इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन बोल सकते हो, ऐप इंस्टॉल करो आप. उसमें यू कैन एग्जीक्यूट योर पाइथन प्रोग्राम. ओके, तो मोबाइल में भी पॉसिबल है, आपके लैपटॉप में भी पॉसिबल है, अगर आपका पीसी है पीसी में भी पॉसिबल है. ऑल थिंग्स कहीं पे भी आप, बिकॉज पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. ओके, तो आज के लिए इतना ही. होमवर्क आप नोट डाउन कर लिया होगा. मैं आपको चार्ट विंडो में आपको ये सब मैं डाल देता हूँ. यू कैन कॉपी पेस्ट फ्रॉम द चार्ट विंडो. पाइथन का साइज कुछ नहीं, 28 MB है. पाइथन का साइज इतना नहीं है. क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, हाँ, यस, आई हैव रिकॉर्डेड द वीडियो. जिसको भी कोई प्रॉब्लम आया होगा तो सब, ये पूरा आज का वीडियो पूरा मैंने रिकॉर्ड करके रखा है. तो सब आपको मिलेगा. आपको पूरा, मैं आपको ये पूरा अप होने के बाद में आपको इसका, या हैव यू सब्सक्राइब दैट चैनल. आपने चैनल सब्सक्राइब किया है यूट्यूब का. अगर आपको यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब जैसे किया है ना, तो नया वीडियो जब वहां पे मैं अपलोड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपको ईमेल के ऊपर उसका लिंक रिसीव हो जाएगा. Okay, when you go to the, I think Sumago Infotech Private Limited. जैसे आप जाओगे यहाँ पे देखो सुमैगो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो सब फर्स्ट ही आएगा. वहां पे आपको सब्सक्राइब करना है. ओके, यू हैव टू सब्सक्राइब हियर. जैसे सब्सक्राइब करोगे तो वहां पे आपको जो भी आपके वीडियोस होंगे वो सब वीडियोस आपको आ जाएंगे. ये मेरा कल का वीडियो है. आज का वीडियो आपको थोड़ा 1 घंटे के बाद में यहाँ पे आ जाएगा. सो जस्ट गो to that channel and subscribe to the channel as soon as earliest. ओके, एंड नोटिफिकेशन के ऊपर मतलब जो भी होगा ना वो आप वहाँ पे करना है सब्सक्राइब करने के बाद में. सो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन. ओके, तो आज का लेक्चर आज हम थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं. कल हम शुरुआत करेंगे अपना डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर.
and some advanced topics in the Python, or any doubts जो भी होगे, so you can actually discuss on your WhatsApp group. Okay, so just bye, take care, thank you. So I am leaving this meeting right now.